Good morning, dear students. Today we will start with our third chapter in English, that is The Little Boy Who Saved Holland. Children's, this story is from a small town, Haarlem, that is in Holland. The story is about a small boy who is 8 years old and who saved Holland. Now let's start. Many years ago, there lived in Haarlem a bright, friendly boy named Hans Brinker. His father worked at the dike. Dike means a slope or wall built on the bank of a river or canal to prevent floods. फ्लड्स को रोकने के लिए जो एक वॉल बना हुआ होता है बैंक ऑफ रिवर पे या कैनल्स पे, उसे बोलते हैं डाइक. His job was to open and close the large gates at the entrance of the canals to control the flow of flood. उनके पापा का जॉब था वो जो डोर होता है उसको टाइमली ओपन करना और क्लोज करना ताकि फ्लड ना आए. He had to close the gates carefully at night else the water would soon overflow and flood the place. अगर वो टाइमली रोज रात को अगर वो गेट बंद नहीं करते तो वो जो एरिया है वो पूरा फ्लडेड हो जाएगा. Hans' father had told him that a big part of their country lay lower than the level of the sea. For a very long time in the past, Hollanders used mounds of earth to save their land from tides. उसके पापा ने उसे बताया था कि काफ़ी बड़ा जो है पार्ट है जो कंट्री का वो उस डाइक के नीचे वाले हिस्से पे रहता है. मतलब जो कंट्री है उसके नीचे वाले हिस्से पे रहता है. तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग है ना सॉइल्स वगैरह की मदद से अपने जो अपना जो एरिया है उसको फ्लडेड होने से बचाते हैं. Now they had learned to construct dikes or barriers. अब उन लोगों को डाइक्स मतलब वो दीवारें बनाना आ गया है. सो वो लोग थोड़ा अपने आप को सेव करना सीख गए हैं. Hans knew that a moment's neglect of his father's duty could cause destruction and death. हैंस को समझ में आ गया कि अगर उसके पापा ने थोड़ा सा भी अपने जॉब में थोड़ा सा इग्नोरेंस दिखाया या थोड़ी लापरवाही दिखाई तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी. Hans was a caring and selfless boy and always wanted to share all he had. One bright spring day, his mother had made his favorite cake. He was very caring boy and he always share whatever he had. One day his mother made a cake, his favorite cake. After eating his share, he begged his mother to let him go to the other side of the dike to see a poor blind man who lived there. अब जब उसने अपने शेयर का हिस्सा खा लिया मतलब अपना शेयर खा लिया केक का, तो उसने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे है ना जो डाइक के साइड वहाँ पे है ना जो पुअर ब्लाइंड मैन रहता है ना, मुझे उसके पास जाना है. ही वॉन्टेड टू गिव हिम अ पोर्शन ऑफ द डिलीशियस केक. वो उन्हें वो केक खिलाना चाहता था. हिज मदर वॉज प्लीज दैट हर लिटिल बॉय हैड थॉट ऑफ द पुअर ओल्ड मैन. उसकी मम्मा बहुत खुश हो गई कि हाँ मेरा बेटा तो गरीब लोगों की मदद कर रहा है, पुअर लोगों के बारे में सोच रहा है. शी एट वंस ब्रॉट अ बास्केट एंड फिल्ड इट विथ केक्स फॉर हिम टू कैरी टू द मैन. Hans' father made his 8-year-old son promise not to stay out too late. अब उसकी मम्मा ने ना एक बास्केट में केक्स वगैरह भर दिए उसे देने के लिए और उसके पापा ने उनसे कहा कि रात को ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना. Soon the boy was on his pathway, thinking how happy the old man would be. अब वो केक्स लेके और निकल गया और सोच रहा था कि वो ओल्ड मैन कितना खुश होगा. The little fellow was not mistaken. The old man was delighted to have the cake. After spending an hour with him, Hans said goodbye and started for his home. अब हैंस जैसे ही केक लेके गया तो वो जो ब्लाइंड मैन था वो बहुत ही खुश हो गया
और है ना उसने अपना केक खाया और हैंस एक 1 आवर तक उसके साथ बैठा था। फिर उससे गुड बाय करके वो अपने घर की तरफ निकला। हिज पाथ ले बिसाइड द डाइक। Along its grassy banks grew beautiful wild flowers, so attractive that Hans picked a bunch of them for his mother. He walked home, humming a happy song. As he was walking along the canal, he thought of his father's brave old gates and felt glad about their strength. For, thought Hans, if the dikes gave way, where would father and mother be? These pretty fields would all be covered with the angry waters. अब वो वहाँ से जो है वापस आ रहा था, तो रास्ते में कैनाल के पास से गुजर रहा था। तो उसने जो है उसने बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स देखे जो उसे बहुत अच्छे लगे। तो उसने एक बंच जो है फ्लावर्स का अपनी मॉम के लिए ले लिया और गुनगुनाते हुए अच्छे से वो जा रहा था। और है ना वो अपने पापा के वो जो गेट्स थे, जो गेट्स उसके पापा ओपन करते थे और क्लोज़ करते थे, उन गेट्स को देख रहा था और सोच रहा था कि अगर है ना ये गेट्स ना होते तो फिर मेरे पापा और मम्मी कहाँ जाते। पूरा जो है सारा ये जो फील्ड है वो पूरा भी एंग्री वाटर्स, जो फ्लड वाला पानी होता है जो बहुत ही स्पीड में आता है, तो उसके पापा ने कहा था कि वो एंग्री वाटर्स होते हैं। तो वो सोच रहा था कि एंग्री वाटर्स से सब कुछ कवर हो जाता। फादर ऑलवेज कॉल देम द एंग्री वाटर्स। आई सपोज ही थिंक्स they are mad at him for keeping them out so long. He also listened to the stealthy sound of a rabbit in the grass and smiled as he recalled the happy light he had seen on the face of his blind old friend. उसके पापा उससे कहते थे कि पानी जो है ना वो बहुत ही एंग्री है, एंग्री वाटर है, क्योंकि है ना उसके पापा उसको बहुत टाइम के लिए ऐसे बंद करके रखते हैं और ऐसे वो जैसे जा रहा है तो उसे एक सीक्रेट सा कहीं से आवाज़ आ रही है रैबिट की, कहीं ग्रास में कहीं से रैबिट की आवाज़ आ रही है और वो खुश खुश होके और जा रहा है और अपने उस ओल्ड ब्लाइंड फ्रेंड का चेहरा याद कर रहा है कि वो कितना खुश हुआ था एंड ऑल. Suddenly he noticed that the sun was setting and he was still some distance from home. It was growing dark and even the blue flowers had turned to grey. But just as he began to walk quickly, he heard the sound of trickling water. अब उसने देखा कि सन जो है वो सेट हो रहा है और अभी भी उसके घर जाने के लिए काफ़ी रास्ता बचा हुआ है। और उसने देखा कि अब अंधेरा हो रहा है और जो ब्लू फ्लावर्स थे वो भी ग्रे हो रहे हैं। तो उसने जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया। इतने में उसके कान में पानी की आवाज़ आई, पानी बह रहा था ऐसा उसके कानों में आवाज़ आई. Where did it come from? He looked up and saw a small hole in the dike through which a tiny stream was flowing. Any child in Holland would be filled with fear at the thought of a leak in the dike. Hans understood the danger. This little hole would soon become a large one and result in a terrible flood. अब उसने सोचा ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है. जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसको पता चला कि ऊपर एक होल है. जो डाइक था ना, जो वॉल था, उसमें एक होल है जिसमें से पानी बह रहा है. अब कोई और बच्चा होता तो वो तो ऐसे ही डर जाता. इसने सोचा कि है ना अगर ये होल को कवर नहीं किया गया तो ये होल धीरे धीरे बड़ा होगा और एक टेरिबल सा फ्लड बन जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. Quick as a flash he saw his duty. Throwing away his flowers, the boy clambered up the heights until he reached the hole. अब उसने सोचा कि अरे बाप रे, इसे बचाना, इसे बंद करना तो मेरी ड्यूटी है. तो उसने फ्लावर्स को फेंका और वो क्लाइंब करने लगा. बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वो ऊपर पहुंचा. until he reached the hole. बड़ी मुश्किल हुई उसे ऊपर चढ़ने में, पर वो आखिर वहाँ पर पहुँच गया. He saw the leak could be stopped with one finger.
So he thrust his chubby little finger in the hole. The flow stopped. Ah, he thought, Harlem shall not be drowned while I am here. उसने देखा कि अरे बाप रे, ये जो पानी है ये तो एक छोटी सी फिंगर से भी बंद हो सकता है। तो उसने फटाक से अपनी छोटी सी फिंगर को उस होल के अंदर डाल दिया और फिर सोचता है कि मैं हार्लेम को डूबने नहीं दूंगा, जब तक मैं हूँ मेरा शहर डूब नहीं सकता। द नाइट वॉज फॉलिंग रैपिडली, चिल्ली वेपर्स filled the air. Our little hero began to tremble with cold and fear. He shouted loudly, come here, come here. But no one came. The cold grew more severe. His tired little finger began to become numb. The ache spread to his arm and soon his whole body was paining. अब जो है रात होने लगी, अब हवा भी ठंडी ठंडी चलने लगी, तो उसको बहुत एक तो रात की वजह से डर भी लगने लगा और हवा की वजह से सर्दी भी लगने लगी। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कम हियर, पर कोई वहाँ था ही नहीं, तो वहाँ पे कोई आया ही नहीं। अब धीरे धीरे जैसे रात होती जा रही है तो वहाँ पे ठंडी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब वो अपनी उसकी जो फिंगर है वो उसने होल में डाली थी, वो भी थकने लगा है। अब उसकी फिंगर में भी थोड़ा दर्द होने लगा है और धीरे धीरे वो दर्द उसके हाथों में होते हुए पूरे बॉडी में उसके पेन होने लगा। He shouted, will no one come? Mother, mother. At home, his mother had already locked the doors and had resolved to scold him when he returned for keeping out of the house for long. Hans tried to whistle, but his teeth chattered with cold, so it was impossible. Yet he was determined. He thought, I will stay here till morning. अब जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, मदर मदर। पर उसकी मम्मा ने तो घर के दरवाजे ऑलरेडी बंद करके रखे थे और बहुत गुस्से में बैठी थी कि जैसे ही वो आएगा तो मैं उससे डांट लगाऊंगी कि वो इतनी रात तक बाहर क्यों रहा। अब उसने है ना सीटी बजाने की ट्राई की, विसल करने की, पर उसके दांत कड़कड़ा रहे थे तो वो भी उससे पॉसिबल नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ मॉर्निंग तक रहूँगा। The midnight moon looked down upon that small boy sitting alone upon a stone halfway up the dike. His head was bent, but he was not asleep. He waited for someone to come. अब चांद भी देख रहा है कि एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका सर नीचे है पर वो सोया नहीं है और he is waiting for someone to come. He knew if he drew away his finger, the angry waters would rush forth over the town. Now he would hold it there till daylight if he lived. अब उसने देखा कि पानी अगर मैंने फिंगर हटा दिया तो पानी बाहर आने लगेगा, तो उसने सोचा कि जब तक सुबह नहीं हो जाती मैं यहाँ ही रहूँगा अगर मैं ज़िंदा रहा तो। At daybreak he saw a man with a lantern in the hand. He was a laborer returning after work all night. The man thought he heard groans as he walked along on the top of the dike. Bending, he saw far down on the side a child writhing with pain. अब जैसे ही सुबह होने लगी तो वहाँ से एक लेबर था, वो हाथ में लालटेन लेके और जा रहा था और उसने देखा कि यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है कि एक मतलब किसी के दर्द में कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही है। तो उसने जैसे ही बेंड होके देखा तो एक बच्चा है छोटा सा जो वहाँ पर खड़ा है। In the name of wonder, boy, he exclaimed, what are you doing there? अब उस इंसान ने बोला, बेटा उस लड़के को बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I am keeping the water from running out, was the simple answer of the little hero. Tell them to come quick. अब उसने बोला, मैं यहाँ पानी को बाहर आने से रोक रहा हूँ, किसी को बोलो यहाँ पर जल्दी आए। It is needless to add that they did come quickly. The town of Haarlem and a great part of Holland was saved. Years passed, many things were forgotten, but the country is still grateful to the little hero who kept his finger in the dike. अब जैसे ही उसने ऐसे बताया तो उस बंदे ने जल्दी से लोगों को बुला लिया
और वहाँ आके सबने उसको होल को फिल कर दिया, उस लड़के ने हॉलैंड को बचा लिया। बहुत साल गुजर गए, लेकिन उसके बाद भी हॉलैंड कंट्री के लोगों ने कभी वो चीज़ नहीं भुलाई कि हम लोगों को एक छोटे से बच्चे ने अपनी फिंगर डाइक में डाल के और फ्लड से बचाया था। सो दिस इज़ योर स्टोरी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। I will send you homework in pictures. You have to do true or false in your textbook only, and rest question answers and answer with reference in your notebook. Okay? Thank you.